کا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ امام حسین اگر رونا چاہے تو کس کس پر روئے، کس لاش پر روئے؟ بیٹے کی لاش پر، بھتیجے کی لاش پر، بھائی کی لاش پر، یا پھر اپنے اصحاب کی لاش پر، یا بیویوں کی بے بسی پر؟ امام حسین حضرت عباس کو بھی شہیدوں میں لا کر جمع کیے، تھکے ہارے تھے، دوپہر کا وقت چل رہا ہے، کڑی دھوپ بھی ہے۔ خیمے سے ہی بی بی نے کہا 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس کی شدت کی وجہ سے دودھ ماؤں کے سینوں سے سوکھ چکا ہے۔ حضرت امام حسین کو ان کی اہلیہ نے بچہ دے کر کہا شاید یہ بچہ یزیدیوں کو دکھائیں تو رحم آ جائے۔ چھوٹے بچوں پر دنیا رحم کرتی ہے، عورتوں پر اور بچوں پر لوگ دیکھ کر کے رحم کھاتے، ترس کھاتے۔ میرے سینے کا دودھ سوکھ گیا، بچے کا حلق سخت ہو گیا ہے، حلق سخت ہو گیا ہے، اسے چند قطرے شاید وہ پانی پلا دے۔ اپنی خاتون کی بات سن کر مولا حسین اپنے بچے کو لے کر آئے تھے فرات کے کنارے۔ ان یزیدیوں سے پھر سے خطبے میں کہا کہ وہ بچہ میں تمہارے سامنے لایا ہوں جو فاطمہ کے نسب کا ہے، حیدر کرار کی آل ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مقابلہ مجھ سے ہے، بچوں سے تو نہیں۔ یہ دیکھو میرا ننھا بچہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، اس کے حلق کو تر کر دو، اسے چند قطرے پانی کے پلاؤ۔ شقی القلب بدبخت یزیدیوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک ظالم یزیدی نے تیز تیر چلایا، حضرت علی اصغر کی گردن پر آ کر لگا، حلق پر تیر ایسا آ کر پیوست ہو گیا۔ 6 مہینے کے بچے کے حلق میں جب تیر چلا جائے، باپ کیا بلبلاتا نہیں ہے؟ آج جس کے بچے ہوں وہ جا کر اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ ہم اپنے بچوں کا بخار برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا بیٹا جب بخار زدہ ہو تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ ہماری ننھی بیٹی اگر سردی اور کھانسی سے رات کو جاگے تو ہمیں بے قراری ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا تھا ہمارے بچے کو ایک بار انگلی کٹی تھی، پوری روح میں جلن ہونے لگ گئی، جسم میں پورا جسم بے قابو تھا۔ ڈاکٹر جب ٹاکے لگا رہا ہو بچہ رو رہا تھا، برداشت سے باہر تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میں یہاں سامنے نہ ہوتا، میرے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنتا۔ بچہ روتا تھا، تڑپ ہوتی تھی۔ میں نے یاد کیا مولا حسین اس دن جب آپ کی گود میں 6 ماہ کا بچہ اور سیدھے اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آ کر لگا، تب امام حسین پر کیا گزری ہوگی۔ بچہ رو بھی نہ سکا، آواز بھی نہ نکال سکا، روتے روتے کوئی انتقال کر جاتا، شہید ہوتا، لیکن اس بچے کو رونے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، آواز نکالنے کی بھی فرصت نہیں دی گئی۔ ایک بار ہچکی لیا بچہ، آنکھیں چوڑی کیا، اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اپنے ننھے سے بچے کے حلق سے تیر کو کھینچ کر نکالا، گلا چھل گیا تھا اور باپ نے سینے سے بچے کو لگا لیا اور پھر کھلے آسمان کی طرف اپنے 6 ماہ کے بچے کو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول کی شریعت کی بقا کے لیے میرے اس ننھے کی قربانی قبول فرما لے، اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ ہے ہم میں سے کوئی اتنی بڑی نظر دے سکے گا اسلام کے لیے؟ ہمارے ہاں جوانی میں بھی مر جانے والے، وہ بھی کسی بیماری میں مرنے والوں کی بھی موت کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم برسوں روتے رہتے ہیں۔ امام حسین اس حلق میں چھپے ہوئے تیر کو نکالے اور شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ بچہ خاموش تھا، خون میں لت پت تھا۔ بی بی نے، خاتون نے یہ سمجھا شاید یزیدیوں نے پانی پلا دیا اس لیے بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ بیویاں پردہ دار تھیں، اندر پردے سے پکار کر کے کہ میرے سرتاج پانی پلا دیا بچے کو انہوں نے، بچہ روتا نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا ہے بی بی اب تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا، اب یہ کبھی تجھ سے دودھ اور پانی کی شکایت نہیں کرے گا۔ جیسے اس خاتون کے سامنے خون میں لت پت شہزادے کو دکھایا گیا،
उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने जवान बेटों की मौत भी देखी, 6 माह के बच्चे को भी देखा। मेरे अजीजों, औरतों के होश उड़ जाते हैं जो मां के सामने बच्चे की मौत होती है। मैंने देखा है 3 दिन के बच्चे की भी मौत होती है तो मां खाना पानी छोड़ देती है, उसका सीना दर्द से कराह रहा होता है, बार बार वो ढूंढती है मेरा बच्चा कहां है जिसे मैं दूध पिलाऊं, सीने से लगाऊं। हुसैन आजम के घर वालों का एक बड़ा इम्तिहान है। क़यामत तक आने वाले इम्तिहान किसे कहते हैं वो दास्तान करबला में सुनो। हुसैन आजम की बीवी ने क्या सब्र किया होगा। शहीद अली असगर को मौला हुसैन ने शहीदों में रख दिया। खानदान के बड़े छोटे जितने मर्द थे सब शहीद हो गए, कोई बाकी नहीं रहा। बेटे भी, भाई भी, भतीजे भी और दोस्त अहबाब भी। खानदान की औरतों में सिर्फ अब कोई बाकी था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन के दरमियानी बेटे थे लेकिन बीमार थे, बीमारी में ही उठ करके आ गए। कहा बाबा जान मुझे इजाजत दे, मैं भी जाता हूं, जहां मेरे बड़े भाइयों ने मुकाबला किया मैं भी जाता हूं। इमाम हुसैन ने बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया और कहा ऐ मेरे बेटे, अगर तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी और मेरे बाद मेरी बीवियों और मेरी बेटियों का कौन मुहाफिज होगा, लिहाजा तू ना जा, अब मेरी बारी है। रसूलुल्लाह के इस अजीम शहजादे की बारी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिठा दिया गया। सैयदा ज़ैनब जो सगी बहन है इमाम हुसैन की, दुख्तरे ज़हरा जो रसूलुल्लाह के गोद में खेली हुई है सैयदा ज़ैनब, वो अपने हुजरे में मौला हुसैन को बुलाती हैं, एक संदूक खोलती हैं और कहती हैं भाई मेरे पास कुछ अमानत है, कुछ अमानत है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया। कहा वो क्या अमानत है। सैयदा ज़ैनब कहती मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मां को आखिरी वक्त देख रही थी, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के इंतकाल का वक्त आया, मैं रो पड़ी, सीने से लग गई मेरे मां के। तो उस वक्त मेरी मां फातिमा ने कहा ज़ैनब तुझसे मैं एक वादा लेती हूं कि जब तक तू जिंदा रहेगी हुसैन का साथ नहीं छोड़ेगी, हुसैन का साथ नहीं छोड़ेगी। हजरत ज़ैनब ने अपनी मां से वादा किया था, इसलिए करबला के मैदान में भी साथ आई और उसके बाद कहती है एक अमानत मेरी मां ने दिया, एक जुब्बा दिया था, एक चादर दी थी और कहा था ज़ैनब यह अमानत तू संभाल कर रखना, एक दिन आएगा जब मेरा बेटा शहादत की दहलीज पर जा रहा होगा, जब वो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए मैदान में उतर रहा होगा, उस वक्त शायद उसे मेरी याद आएगी। मेरी मां होती तो ऐ ज़ैनब मैं तुझे अपना नायब वकील बनाती हूं, उसे अपनी मां की याद आने न पाए तो अपने हाथों से ये जुब्बा पहना देना। हजरत ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन को ये कहती है मेरी मां की ये वसीयत थी और संदूक से वो जुब्बा उठाती है और पहनाती है। और इमाम हुसैन कहते हैं सच कहती हो ज़ैनब, सच कहती हो ज़ैनब, मेरी मां ने आज से कितने साल पहले मेरे दर्द का एहसास किया था, कितने सालों पहले उन्होंने मेरे आज के दर्द का एहसास किया। सच कहो ज़ैनब, आज के इस वक्त मुझे मेरी मां की बहुत याद आती है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद आती है। हजरत ज़ैनब ने अपने हाथों से जुब्बा पहनाया। रसूलुल्लाह का ये नौजवान बेटा मैदान करबला में जब उतर रहा था, अल्लाह अकबर, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, जुब्बा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर पट्टा जाफर तैयार का, तलवार हैदर कर्रार की, हजरत अमीर हमजा की ढाल, सारे तबर्रुकात लेकर इमाम हुसैन अपनी बीवियों के खीमे में आए, औरतों के खीमे में आए। औरतों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई, औरतों की आंखें दबदबा गई। मौला हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन किया और कहा कसम है तुम्हें मेरे बाद
कोई औरत बेपर्दा ना होगी, कोई मुझ पर मातम या नौहा नहीं करेगी, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने मजबूत हाथों से पकड़ी रहेगी। ये आखिरी वसीयतें थी मौला हुसैन की। सब खवातीन को आपने अलविदा कहा, वसीयत किया, सलाम किया और बाहर आकर खीमे से अपने अजीज तरीन घोड़े जुलजनाह उन पर बैठ गए और करबला की तरफ निकल पड़े। मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब लगता था कि दूल्हा तैयार होकर मैदान में आया है। सारे तबरुकात तो जिस्म अक़दस पर नजर आ रहे थे, मेरे आका की झलक नजर आ रही है। खूबसूरती, जमाल, जलाल सब लिए हुसैन करबला में उतरे हुए हैं। घोड़े को जब एड़ लगाई, मेज दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े को फिर चाबुक लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। आपने उतर करके देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी खड़ी थी और जुलजना है इनसे कहती थी, ऐ मेरे अजीज जुलजना, बाबा को आज मत ले जाना, इसलिए कि अगर तू आज उन्हें ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। 9 साल की बच्ची सकीना को आपने गले से लगाया और कहा, सकीना जाओ खीमे में, मर्जी मौला यही है, मुझे इम्तिहान की घड़ी में उतरना है, तुम सब्र के साथ रहो, अपनी माँ के साथ और अपने ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। ये कहकर बच्ची को बिठाया, आखिरी बार अपनी औरतों को सलाम किया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है दरमियान में अहले बैत। मौला हुसैन ने एड़ लगाई, जुलजनाहैन को लेकर जब खीमे से निकलकर करबला के मैदान में आते हैं, यजीदियों के साथ इत्माम हुज्जत के लिए फिर से आपने खुतबा दिया। मौला हुसैन ने खुतबे में जो पढ़ा था, मेरे अजीज व फसीह व बलीग खुतबा है। आपने उनको ललकारते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे सामने उतरा हूं, तुमने मेरे मकाम को क्या नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्न अली हूं, जहरा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी निस्बतें तुम्हें मालूम है, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, क्या मेरा खून तुम पर हलाल है? सारी बातें करने के बाद भी कुफियों पर कुछ असर ना हुआ। फिर मुकाबले के लिए उनके बाद एक के बाद दीगरे आते रहे। कोई बद्र बिन यमनी नाम का एक शख्स था, वो मुकाबले के लिए आया और इमाम हुसैन को जगह जगह से तीर मारने लगा। फिर दूसरा आया। मैं कभी सोचता हूं, इतना थका हारा शहजादा जिसने अपने कई बच्चों की लाशें उठाई है, अब फिर उसको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 56 साल की उम्र है मेरे अजीजों, 56 साल की उम्र में घोड़े पर बैठ करके वो क्या क्या ना देखा होगा करबला के मैदान में। एक तरफ छोटे बच्चे अली असगर की शहादत देखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू देखा है, अली अकबर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ते देखा है, कासिम बिन हसन की गर्दन को अलग होते देखा है, कितने साथियों के जनाजे उठाए, कितनों की लाशें उठाई। अब ताकत क्या बची होगी? हम तो निढाल हो जाते हैं हमारे एक बाप का जनाजा उठाने के बाद। रात भर ऐसा लगता है कि जोर ढीले हो गए, थकन से चूर हो जाते हैं। आज कब्रिस्तान जाकर क्या हो, एक बार जब किसी की तदफीन से वापस आते हो तो थकान से ऐसे चूर हो जाते हो कि रोटी खाने का भी मन नहीं करता। मौला हुसैन तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम। कितने लाशें तुमने उठाए, कितने बेबसी के आलम में तुमने खवातीन को देखा है। हम अपनी बीवियों की, औरतों की एक आह पुकार नहीं सुन पाते, हम अपने खानदान की औरतों की बेबसी नहीं देख सकते। लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाह, तुम्हारी इस्तिकामत को सलाह, हर चीज को देखा, हर चीज को देखा। लेकिन एक चीज करबला में जो नहीं हुई वो क्या थी? हुसैन की जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई। एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला क्या मेरा ही घर है इस इम्तिहान के लिए? एक बार भी नहीं कहा क्या मौला मेरे ही बेटे हैं कुर्बान होने के लिए? एक बार भी नहीं कहा मौला क्या मेरे ही भाई हैं शहादत के लिए? नहीं, बल्कि हर शहादत पर कहा मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, तूने इस अजीम खिदमत के लिए मेरे घराने का इंतखाब किया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तसव्वुर करना भी मेरे लिए मुश्किल है, तसव्वुर करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। जब वो थका हारा
रसूलुल्लाह का जवान बेटा, जिसकी गर्दन पर मेरे आका सूंघा करते हो, जिसके रुखसारों के बोसे लेते हो, जिसके मुंह में अपनी जुबान रखते हो, जिसको अपने कंधों पर सवार करते हो, जिसको सजदे के आलम में अपनी पीठ पर बिठाते हो और कभी खजूरों को चबाकर मुंह में डालते हो, वो शहजादा जब 3 दिन की भूख और प्यास के बाद अपने अजीजों की मौत को देखने के बाद घोड़े पर बैठा हो, ऐ जालिमों, काश तुम्हें उनकी प्यास पर रहम आता, उनकी भूख पर रहम आता, उनके जवान बेटों की मौत पर रहम आता। हम जिसके घर में मैयत होती है अपने घरों में खाना बना बना कर भेजते हैं कि आज गम का दिन है, उन पर रहम किया जाए। पुरानी दुश्मनियां भूल जाते हैं। तो फैलाने थे यजीदियों तुम पर, तुमने खून हुसैन से कैसे अपने हाथों को रंगीन किया। एक दिल में भी रहम ना आया। मुकाबला किया, कई मर्तबा इमाम हुसैन थक कर घोड़े से नीचे आ जाते, फिर चढ़ते थे, मुकाबला करते, लेकिन आपने एक बात होने नहीं दिया कि कभी कोई तारीख लिखने वाला ये न कहे हैदर कर्रार का बेटा यजीदियों से डर गया था, खेमे में छुप गया था या मैदान से भाग गया था। नहीं, तन्हा हुसैन 250 लोगों के मुहासरे में कभी दाएं कभी बाएं, कभी सामने कभी पीछे पलट पलट करके हमला करते थे, इसलिए कि उनके बाप का नाम कर्रार था। कर्रार कहते हैं पलट करके हमला करने वाले को। और हुसैन ने वो जौहर करबला में दिखाए थे, कोई सामने से आए, कोई पीछे से आए, कोई दाएं से आए, कोई बाएं से आए। तारीख निगारों ने लिखा है कई मिनटों तक, कई घंटों तक, शायद हो सकता है साथें बढ़ गई हो, मुकाबला करते रहे, लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं है कि जख्मी नहीं हुए। इमाम हुसैन के पूरे जिस्म पर कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पेट पर, कभी पीठ पर, कभी रानों पर, कभी पिंडलियों पर तीर आते थे, चुभते थे, निकालने तक की फुर्सत नहीं थी। जिस्म से तीर निकालने की फुर्सत नहीं थी। तकरीबन 72 तीर आपके जिस्म मुबारक पर लगे हुए थे। 72 तीरों से जिस्म मुबारक को छेद दिया गया था। सुराख हर जगह, खून हर जगह से रिस रहा है, कोई जगह जिसमें अथर पर बाकी नहीं। फिर भी तलवार उठाए मुकाबला करते रहे। थक गए, बहुत थक गए। किस किस बात पर थके होंगे ये कहना भी मुश्किल है। मैं कह तो रहा हूं मेरे अजीज, वो रोते तो किस बात पर रोते? वो रोते तो अली असगर पर रोते या अली अकबर पर रोते, वो कासिम पर रोते कि अब्बास पर रोते, या बीबी ज़ैनब की बेबसी पर रोते, या अपनी बीवियों पर रोते, किस पर रोते? कभी कभार गमों के पहाड़ ऐसे आ जाए कि किस पर रोए समझ में ना आए। मौला हुसैन का ये वो वक्त था, जोहर का वक्त करीब है, बल्कि वो जुमा का दिन है। शायद इस दिन आपको पता होगा पूरी दुनिया के मुसलमान खुतबे जुमा पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और जुमा के खुतबे में मौला हुसैन को पर भी और उनके नाना पर भी दुरूद भेजा जा रहा है। हर खुतबे को पढ़ने वाला खतीब रसूलुल्लाह के कसीदे पढ़ रहा होगा, लेकिन करबला के मैदान में उस रसूल के शहजादे पर तलवारें, तीर और नेज़े बरसाए जा रहे हैं। वह अजीब दिल रहा होगा। एक तरफ खुतबा की आवाज और एक तरफ हुसैन के खून से रंगीन तलवारें जो सनसना रही है। हुसैन आजम अपने घोड़े से नीचे की तरफ आ गए, जमीन की तरफ से आ गए, और जैसे ही आज जमीन पर आ गिरे तो जालिमों ने देखा कि अब ये थकान से चूर है, मुकाबला कर नहीं सकता। जबकि इमाम हुसैन ने उस भूख के आलम में और जख्मों के आलम में कई लोगों को फनाफिन्नार किया है, कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। इसीलिए मैं कहता हूं हुसैनी वो होता है जो आसानी से किसी के हाथ में नहीं आता, जाएगा दुनिया से लेकिन दूसरों को मजा चखा करके जाएगा। हुसैनी वही होता है। इमाम हुसैन जब जमीन पर आ गिरे तो शिमर बिन जोशन जो खबीसुल नफ्स है और खोली बिन यजीद जो खबीसुल नफ्स है, ये खानदानी खबीस लोग थे, फौरन झपट पड़े और मौला हुसैन की रान पर एक इस पैर रख करके चढ़ गया और एक ने पीठ पर अपना कदम रखा। और जैसे ही मौला हुसैन सजदे के आलम में चले गए थे, सजदे के आलम में चले गए,
इन जालिमों ने मेरे उस रसूल पाक के शहजादे का सर मुबारक अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू ना होता तो मैं रह जाती सदाकत ऐ हुसैन। कलमे शहादत है, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। लाखों सलाम तुम्हारे उस खून पर, लाखों सलाम तुम्हारी तुर्बत अनवर पर। हुसैन आजम तुम्हारे हर लम्हे पर करोड़ों दुरूद व सलाम। और दुनिया भर के मुसलमान आज तुम्हें खिराज अकीदत पेश करते थे। मौला हुसैन, तुमने जो करबला में कर दिखाया वो क़यामत तक आने वाले करोड़ों लोग भी तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी शहादत नहीं दे सकेंगे। आज हमारी जान निछावर है उस शहीद करबला की बारगाह में, उनकी औलाद पर, उनके खून पर, उनके रेखसारों पर। बल्कि मैं कसम खाकर कहता हूं, रब्बे ज़ुल जलाल हमें तौफीक अता करे तो मौला हुसैन के कदमों से लगने वाली खाक पर, उन रेत के सरना पर भी हम अपनी गर्दन निछावर करने को अपनी सआदत समझते हैं। खड़े हो जाएं बारगाह हुसैन में, खिराज अकीदत पेश करेंगे।